Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication chapter. So today we are going to start with new chapter of Principle of Electronic Communication, the chapter number 4. It is wave propagation. So why wave propagation is given in your subject in this semester? You are studying Principle of Electronic Communication subject. So till now you have understood the concept of how the electronic communication takes place. Then you have seen the modulation process and seen two different types of modulation techniques, AM and FM. While we are discussing about the block diagram of electronic communication system, so we have understood your information can be travel from one place to another place in the form of radio waves, that is electromagnetic waves over space. So in this chapter, we are going to see what are the different types of waves that propagates in space, how they are traveling, and how they are carrying our information from one place to another place. As you know very well, our information is traveling in the form of electromagnetic waves. So how these electromagnetic waves is propagate in space in different patterns. So you are going to see in details in this chapter. We are going to see how many different types of waves are there. They are propagate in which manner, in which pattern for transmitting our information from one place to another place in space. So the very first basic concept starting in this chapter, wave propagation chapter, it is written over here. Fundamentals of electromagnetic waves, or the name is given transverse electromagnetic waves. The very first thing, very important thing in this chapter is starting with electromagnetic waves. So why the electromagnetic waves is known as transverse waves? So we have to see, we have to understand कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्यों ट्रांसवर्स वेव कहते हैं. जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इस पर्टिकुलर वेव में कौन कौन सी फील्ड होने वाली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पर्टिकुलर वेव में कौन कौन सी फील्ड होती है, प्रोपोगेट होती है. तो इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. तो दोनों का कॉम्बिनेशन तब जाके ये क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. So in electromagnetic waves, there is electric field also and magnetic field also. So the very first thing we have to understand, हम लोग को ये जानना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स क्यों बोलते हैं. और इसका एब्रीवेशन आपको ऐसा भी आता है TEM. Why electromagnetic waves is known as TEM? T stands for transverse, EM stands for electromagnetic. So as you can see in this diagram is 3D, three-dimensional diagram. For three-dimensional diagram, we are taking the three axes, that is x-axis, y-axis and z-axis. तो ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्री डायमेंशनल डायग्राम आपको क्या नजर आ रहा है इधर पे. हॉरिजॉन्टल में आपके पास एक्स एक्सिस है, वर्टिकल में आपके पास वाई एक्सिस है, और मिडल में आपको इधर पे शो जो ऐसा करके दिखाया हुआ है, इट इज़ नथिंग बट जेड एक्सिस. सो जब तीन एक्सिस यूज होती है तो बोलते हैं 3D प्लॉट. सो दिस इज अ 3D प्लॉट ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन सी फील्ड होती है वो इधर पे शो किया हुआ है. तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे जो डायग्राम में आपको शो किया हुआ है, दिस इज द डायग्राम ऑफ हाउ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट. तो किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका स्पेस में प्रोपोगेट होता है, ये उसका डायग्राम दिया हुआ है. और इस डायग्राम में आपको इधर पे क्या क्या नजर आ रहा है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज सम मैग्नेटिक फील्ड. तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको जो दिख रहा है, द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द वर्टिकल डायरेक्शन फील्ड इज नथिंग बट वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड. तो ये डायग्राम में आपको दोनों भी फील्ड नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड साथ ही साथ में तो है, लेकिन वो किस तरीके से फैल रहा है, किस तरीके से जा रहा है. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कैसा है वो भी देखो आप लोग. दोनों का डायरेक्शन देख के आपको क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री टू ईच अदर. In this diagram you are able to see this electric field and magnetic field both are perpendicular to each other,
एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, यानी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से प्रोपोगेट हो रहा है, उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपको इधर पे जेड एक्सिस के इधर पे दिया हुआ है, दिखाया हुआ है। तो क्या है मिला जुला के ये कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों तो परपेंडिकुलर तो है आपस में, एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी जो डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर रही है उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को भी क्या है वो परपेंडिकुलर है। तो दैट्स वाई इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ इधर पे स्टेटमेंट में आपको नजर आएगा। इधर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, पहले तो वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द रेडियो वेव्स विच ट्रैवल इन स्पेस, जो स्पेस में ट्रैवल करता है एट एन स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से ट्रैवल करता है, that is 3 into 10 to power 8 meter per second. This wave consists of both electric and magnetic field. तो ये वेव में क्या होता है, दोनों भी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। therefore it is known as electromagnetic waves। तो उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको ये फिगर में क्या शो हो रहा है, the electric field and magnetic field and direction of propagation all are mutually perpendicular। सब आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, 90 डिग्री टू ईच अदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, मैग्नेटिक फील्ड देख लो, कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देखो, दोनों आपस में क्या है, ये सब परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और आपस में लोग परपेंडिकुलर तो है, और साथ ही साथ में और किसको परपेंडिकुलर है, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो दैट्स वाई ये मिला जुला के ये सब जो चीज़ नज़र आ रही है, तो इस नेचर को, ऐसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इसलिए क्या कहा जाता है, उसको ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। तो देयरफॉर द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसके लिए उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो सब की सब आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इसके लिए ऐसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इसलिए क्या कहा जाता है, उसको ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर में कर पाया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स में आता है, इन 2 मार्क्स क्वेश्चन कि पूछता है आप लोग को वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का कभी कभी आपके पेपर में आता है। तो उसमें आपको इसी तरीके से अच्छी तरीके से यही चीज़ समझाना है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो सब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और वो सब परपेंडिकुलर तो है ही, तो और उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को भी परपेंडिकुलर है। मैं आपको एक और न्यू स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें मैं आपको उसका एनिमेशन दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो होता है, प्रोपोगेट होता है। तो आपको ये चीज़ और क्लियर होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है, ये स्क्रीन विजिबल है, न्यू शेयर विजिबल है, एज यू आर एबल टू सी। कोई मुझे फीडबैक देगा, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? यस सर, दिख रहा ओके। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को, इधर पे ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की किस में, ब्लू में, मैग्नेटिक फील्ड किस में आप लोग की, रेड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी देखो, वो सब दोनों क्या है, सब 90 डिग्री टू ईच अदर है, सब जगह पे 90 डिग्री टू ईच अदर है। और ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, जेड जो आपको दिखा है, तो ये सब आपस में उसको भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो वेव किस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है, जो प्रोपोगेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, as well as to the direction of propagation, all things are mutually perpendicular to each other। So that's why this concept, this thing is known as transfer। ऐसा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इसलिए क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वो चीज़ क्लियर हो गई होगी ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग बैक टू, अब ये पुराना वाला अपना नोट्स अवेलेबल है, दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है।
दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. ओके, नाउ मूविंग अहेड, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को देखना है पोलराइजेशन। व्हाट डू मीन बाय पोलराइजेशन? तो पोलराइजेशन क्या है वो हम लोग को पहले अंडरस्टैंड करना है। तो इट इज़ द फिजिकल ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन कैसा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, उस चीज़ को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। तो ये चीज़ आप लोग अभी सुनोगे आगे चल के, टेक्निकल टर्म है, वेव प्रोपोगेशन से रिलेटेड टर्म है ये पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द फिजिकल ओरिएंटेशन, यानी फिजिकली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस कैसा ओरिएंटेशन रख रही है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। यानी हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फिजिकली ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो रही है, प्रोपोगेट कैसा दिख रही है, अगर वो परपेंडिकुलर है या वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में है, क्या है। तो जो फिजिकल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस इज नोन एज पोलराइजेशन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन आर देयर? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन है, जिसमें से क्या क्या टाइप्स है? हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन, वर्टिकल पोलराइजेशन, इलिप्टिकल पोलराइजेशन एंड सर्कुलर पोलराइजेशन। तो 4 टाइप के पोलराइजेशन अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, वर्टिकल किसको बोलते हैं, इलिप्टिकल किसको बोलते हैं एंड सर्कुलर किसको बोलते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन किसको बोलते हैं? व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, द प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन किसको बोलते हैं? जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली पैरेलल होगी अर्थ सरफेस को, या नहीं तो दूसरे टर्म में क्या बोला गया, और द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, अगर वेव का प्रोपोगेशन इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर वेव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस को, तो उस टाइप के पोलराइजेशन को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। तो अगर कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है, तो अगर वो वेव एग्जैक्टली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस ट्रेवल कर रही, तो ऐसे टाइप की वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा पोलराइजेशन बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। हम लोग ने अभी जस्ट पोलराइजेशन का मीनिंग अंडरस्टैंड किए, द फिजिकल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन कैसा है अर्थ सरफेस के हिसाब से, तो उसके हिसाब से वो पोलराइजेशन बनता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल रहेगी अर्थ सरफेस को, तो वो ओरिएंटेशन जो है, वो जो पोलराइजेशन, उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा पोलराइजेशन बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन बोलेंगे। सो द नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या आपका? वर्टिकल पोलराइजेशन। तो वर्टिकल पोलराइजेशन में क्या रहेगा? व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी परपेंडिकुलर होगी टू द अर्थ सरफेस को, तो वो पोलराइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल पोलराइजेशन। यहाँ पे क्या था? हॉरिजॉन्टल में था, यहाँ पे क्या है? वर्टिकल में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में रहेगी, या आपकी वेव वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही रहेगी, तो ऐसे वेव को हम लोग कौन सा पोलराइजेशन वेव बोलेंगे? वर्टिकल पोलराइजेशन वेव बोलेंगे। So when the electric field is exactly perpendicular or 90 degree to the earth surface, so that wave is known as what? Vertical polarization. Then the third one जो आपके सामने वो है elliptical polarization। तो elliptical polarization किसको बोलेंगे? अब elliptical polarization में क्या होगा? When the electric field propagates in all direction, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रोपोगेट करेगी सारे डायरेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कम प्रोपोगेट करेगी एज कम्पेयर टू वर्टिकल पोलराइजेशन, तो ऐसे टाइप के प्रोपोगेशन ऑफ वेव को हम लोग कौन सा पोलराइजेशन वेव बोलेंगे? इलिप्टिकल। तो इलिप्टिकल कर्व आपको नजर आ रहा है, इस इलिप्टिकल कर्व में क्या नजर आ रहा है? ये जो हॉरिजॉन्टल का जो प्रोपोगेशन है एज कम्पेयर टू वर्टिकल, वो क्या है? कम है। तो E1 जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 जो है वो सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। E1 जो है वो हॉरिजॉन्टल में प्रोपोगेट कर रही है, E2 जो है वो वर्टिकल में प्रोपोगेट कर रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कम प्रोपोगेट कर रही है एज कम्पेयर टू वर्टिकल। तो ऐसे टाइप के वेव को हम लोग कौन सा पोलराइजेशन वेव बोलेंगे? उसको elliptical polarization. So when the electric field propagates in all the direction but propagates in horizontal direction less, but in propagate in horizontal direction less than propagation in vertical direction। तो ये डायग्राम आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे E1 is less than E2, E1 हॉरिजॉन्टल का है, E2 वर्टिकल का है। तो ऐसे टाइप के कर्व को, ऐसे टाइप के वेव को हम लोग कौन सा पोलराइजेशन वेव बोलेंगे? इलिप्टिकल पोलराइजेशन वेव बोलेंगे। देन द नेक्स्ट लास्ट वन, लास्ट टाइप ऑफ पोलराइजेशन का क्या नाम है? सर्कुलर पोलराइजेशन। सर्कुलर पोलराइजेशन में क्या होगा? व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट्स इन ऑल डायरेक्शन इक्वली,
जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी एक ही बराबर, एक ही जैसा, तो ऐसे टाइप के वेव को हम लोग कौन सा पोलराइजेशन वेव बोलेंगे? सर्कुलर पोलराइजेशन। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल की प्रोपोगेट हो रही है वही सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में भी प्रोपोगेट हो रही है। तो इसके लिए जो कर्व जो बना हुआ है वो क्या कर्व बना हुआ है? सर्कुलर फॉर्म का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 2, E1 इज इक्वल टू E2। सो दैट्स वाई ये कौन सा टाइप का पोलराइजेशन वेव है? सर्कुलर पोलराइजेशन वेव। तो सिंपल है, व्हाट इज पोलराइजेशन? तो पोलराइजेशन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है? वो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन अर्थ सरफेस के हिसाब से कैसा है, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। चार टाइप के पोलराइजेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इलिप्टिकल, सर्कुलर। तो डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से ये सब नाम दिया हुआ है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल रहेगा तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको वर्टिकल बोलेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में प्रोपोगेट करेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल में कम करेगा वर्टिकल के हिसाब से, उसको इलिप्टिकल बोलेंगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में एक ही बराबर के हिसाब से प्रोपोगेट करेगा तो उसको बोलेंगे सर्कुलर पोलराइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी कभी आपके मार्क्स में आ सकता है, व्हाट इज पोलराइजेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। तो आपको इस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो अभी हम लोग को आगे बढ़ना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव प्रोपोगेशन आर देयर, और स्पेस में कौन कौन सी तरीके की वेव प्रोपोगेट होती है, कौन से बेसिस पे क्लासीफाई किया हुआ है, उसके डिटेल में अभी हम लोग को ये जानना है, अंडरस्टैंड करना है। तो आपके सामने जो हेडिंग है, टाइप्स ऑफ वेव प्रोपोगेशन, तो किस किस तरीके की वेव प्रोपोगेट करती है स्पेस में। तो यहाँ पे दिया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी क्लासिफिकेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव है, जो आपके सामने जो वेव का प्रोपोगेशन का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से ये वेव अलग अलग तरीके की प्रोपोगेट करती है। लेस फ्रीक्वेंसी के लिए ये वेव प्रोपोगेट होगी, मीडियम फ्रीक्वेंसी के लिए वो वेव प्रोपोगेट होगी, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वो वेव प्रोपोगेट होगी। तो वो हिसाब से उसका नाम भी दिया हुआ है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से अलग अलग तरीके की वेव प्रोपोगेट होती है। तो ये सबसे पहले तो आपको ये दिया हुआ है, दिखाया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स की वेव प्रोपोगेट होती है। दिस एज शोन इन बिलो। ये क्या क्या है वो दिया हुआ है आपके सामने। तो सबसे पहले आपके सामने फ्रीक्वेंसी रेंज 30 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज में। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज में जो वेव प्रोपोगेट होगी, जो स्पेस में वेव प्रोपोगेट होगी, हमारी इंफॉर्मेशन को लेके जाएगी, वो कौन सी वेव है? इधर पे दिया हुआ है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। So ground wave propagation is covering the frequency range from 30 kilohertz to 3 megahertz। तो 30 kilohertz से 3 megahertz में कौन सी वेव प्रोपोगेट होती है? ग्राउंड वेव प्रोपोगेट होती है। Now above 3 megahertz to 30 megahertz। So 3 megahertz 30 megahertz की रेंज में जो वेव प्रोपोगेट होती है वो कौन सी वेव प्रोपोगेट होती है? स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो स्काई वेव प्रोपोगेशन जो है वो 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज कवर करती है। एंड 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज में जो वेव प्रोपोगेट होती है वो कौन सी वेव प्रोपोगेट होती है? स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये ग्राउंड वेव नाम क्यों दिया हुआ है, इसका मतलब ये ग्राउंड का सपोर्ट लेती है ट्रैवल होने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए। स्काई वेव क्यों दिया हुआ है, मतलब ये स्काई में जो लेयर्स है उसका सपोर्ट लेती है प्रोपोगेट होने में, और जो हाई डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है, दैट्स वाई द नेम इज़ गिवन। हाई फ्रीक्वेंसी को जो कैरी करती है वो कौन सी वेव प्रोपोगेट होती है? स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो सबसे पहले जो 3 क्लासिफिकेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है वो कौन से बेसिस पे किया हुआ है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ग्राउंड वेव इज ट्रैवल विद इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 30K to 3 मेगा। स्काई वेव प्रोपोगेट विद इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 3 मेगा टू 30 मेगा। एंड स्पेस वेव प्रोपोगेशन इज ट्रैवल विद इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 30 मेगा टू 300 मेगाहर्ट्ज। तो हम लोग को वन बाय वन करके ये सब वेव प्रोपोगेशन के बारे में जानना है, अंडरस्टैंड करना है किस तरीके से एक्चुअली में ये सब वेव प्रोपोगेट होती है, क्या होता है उसके अंदर। वन बाय वन करके अभी हम लोग को ये चीज़ अंडरस्टैंड करना है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। अब नाम से ही आपको मालूम पड़ना चाहिए, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यानी वो वेव जो किसका सपोर्ट लेती है प्रोपोगेट होने के लिए? ग्राउंड का, अर्थ का। सो द वेव विच प्रोपोगेट्स अलोंग द अर्थ सरफेस, जो वेव अर्थ सरफेस के अलोंग में प्रोपोगेट होती है, ट्रैवल होती है, उस वेव को क्या कहते हैं? ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। जैसे कि आपके सामने अभी ये डायग्राम है,
ये डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में क्या समझ में आ रहा है। दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये आपका क्या है, दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है, ये एंटेना है, ट्रांसमिटिंग एंटेना माउंट किया हुआ है अर्थ सरफेस पे। अब क्या हो रहा है, ट्रांसमिटिंग एंटेना माउंट किया हुआ है, तो ट्रांसमिटिंग एंटेना के थ्रू आपकी वेव निकलेगी। तो ये वेव जो निकल रही है वो कैसा प्रोपोगेट कर रही है, क्या चीज़ का वेव, क्या चीज़ का सपोर्ट ले रही है। दिस वेव इज टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दिस अर्थ सरफेस, ये ग्राउंड का सपोर्ट ले रही है, ये दिख रहा है डॉटेड लाइन में आपको। सो दिस डॉटेड लाइन इज नथिंग बट इट इज शोइंग यू द सरफेस वेव। तो ये जो सब सरफेस वेव है जो निकली एंटेना से, जो निकल के रेडिएट हो रही है, तो ये वेव कैसा प्रोपोगेट हो रही है, दिस इज वेव्स आर प्रोपोगेटिंग अलोंग दी अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के अलोंग में ये सब वेव क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। सो मीन्स व्हाट, द वेव विच आर ट्रेवल्स अलोंग द अर्थ सरफेस, so that wave is known as what, ground wave propagation। अब इसके अंदर एक चीज़ है, एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, एक चीज़ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, वो आपको अभी क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपको अब नीचे वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है, दिस इज द अर्थ सरफेस, बराबर है, ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर के थ्रू अपनी वेव रेडिएट हुई। तो वेव जब स्टार्टिंग में रेडिएट होगी, वेव जब स्टार्टिंग में रेडिएट होगी, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो सबसे अच्छा होगा। जो वेव का जो स्ट्रेंथ होगा, जब जहाँ से इनिशियली वो स्टार्ट हुई, तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसे जैसे वेव फैलते जाएगी, आगे बढ़ते जाएगी, तो स्टार्टिंग में वो देखो कैसा शो किया हुआ है आपको, वर्टिकली दिखाया हुआ है, अलोंग दी अर्थ सरफेस के हिसाब से वो क्या कर रही, ट्रेवल कर रही, तो एकदम वर्टिकली स्ट्रेट है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे वो आगे डिस्टेंस कवर करते जाएगी, वो धीरे धीरे इंक्लाइन होते जाएगी, वो वेव क्या होती जाएगी, इंक्लाइन होते जाएगी, इंक्लाइन होते जाएगी। तो इंक्लाइन होना मतलब यहाँ पे शो किया हुआ है उसका टिल्ट एंगल, यानी वो धीरे धीरे क्या होते जाएगी, टिल्ट होते जाएगी, मुड़ते जाएगी, बेंड होते जाएगी। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते जाएगी, उतना ज़्यादा उसका टिल्ट एंगल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। टिल्ट एंगल क्या होते जाएगा उसका, बढ़ते जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अर्थ सरफेस के साथ में जाके मिल जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये ग्राउंड वेव का प्रॉब्लम क्या है, क्या समझ में आया। तो ग्राउंड वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एज द डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, वो वेव का टिल्ट एंगल मतलब ये होता है बैंडिंग, यानी वो अब क्या होती जाएगी, अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल में आते जाएगी, और अर्थ सरफेस में जाके फिर वो मिल जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वेनिश्ड हो जाएगी। तो उसका टिल्ट एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग। एक टाइम ऐसा आएगा, दिस वेव इज गोइंग टू बी शॉर्ट सर्किटेड विथ अर्थ सरफेस एंड डिमिनिश एंड विल डिसअपियर, डिसअपियर हो जाएगी। तो ये चीज़ है, ये ड्रॉबैक है इसका, किसका, अर्थ सरफेस अपना ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का। इसके लिए उसको ज़्यादा डिस्टेंस तक का यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो फ्यू 100 किलोमीटर्स तक का, इसके फ्यू मीटर्स तक के डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ करते हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। तो यही चीज़ इधर पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इधर पे। तो ग्राउंड वेव्स क्या है, सबसे पहले वो दिया हुआ है, ग्राउंड वेव्स आर द वेव्स विच ट्रैवल अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी वो वेव्स है जो कहाँ पे ट्रैवल करती है, अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। दे आर वर्टिकली पोलराइज। कोई मुझे बता सकता है ये वर्टिकली पोलराइज क्यों लिखा हुआ है, वाई दिस वेव्स इज रिटन ओवर हियर वर्टिकल पोलराइज। कोई इसका रीज़न मुझे बता सकता है, ये वेव को वर्टिकल पोलराइज क्यों बोला है, एनीबडी ऑफ यू, आप में से कोई भी एक। Why it is shown ground wave as vertically polarized। आप लोग सुन रहे ना मेरा लेक्चर, ऐसा तो नहीं ना बंद करके बैठ गए। तो ये वर्टिकल पोलराइज क्यों बोला गया इसको, ग्राउंड वेव को, बिकॉज आपको दिख रहा है ना ये, इसका जो फील्ड का जो दिख रहा है डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर है ना अर्थ सरफेस को, दिखा स्टार्टिंग में ही। ये अर्थ सरफेस के हिसाब से जो इसका फील्ड है वो कैसा है, परपेंडिकुलर। तो अभी हम लोग ने जस्ट पढ़े, उसको वर्टिकल पोलराइजेशन क्यों बोलेंगे, बिकॉज द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वेव की, वो एग्जैक्टली क्या है, परपेंडिकुलर है, जो ट्रैवल कर रही है अर्थ सरफेस को, तो स्ट्रेटली ट्रैवल कर रही है ना, प्रोपोगेट जो हो रही है ये वेव जो है वर्टिकली है ना। तो दैट्स वाई इसको क्या बोला गया, इसको वर्टिकली पोलराइज। तो दे आर वर्टिकल पोलराइज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। ग्राउंड वेव्स आर इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में होती है, ये सब पॉइंट्स है उसके, 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। तो ग्राउंड वेव जो प्रोपोगेट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। द सिग्नल कैन प्रोपोगेट फॉर 100 of miles ऑफ लो फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी रेंज कम है तो 100 ऑफ माइल्स के लिए कवर हो सकता है। एज द डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा द वेव टिल्ट मोर, वेव का टिल्ट एंगल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। दिस इंक्रीजिंग टिल्ट, तो ये जो टिल्ट एंगल इंक्रीज हो रहा है क्या कॉज करेगा, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ द वेव। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वेव क्या हो जाएगी, अर्थ सरफेस के साथ में क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। सो ग्राउंड वेव कांट बी यूज अबाउट 3 मेगाहर्ट्ज, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम लोग अबाउट 3 मेगाहर्ट्ज। तो रिजल्ट क्लियर समझ में आया सब लोग को, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यानी वो वेव जो कहाँ पे ट्रेवल करती है, अलोंग दी सरफेस ऑफ दी वेव ट्रेवल करती है, और ये कैसा पोलराइज किया हुआ रहता है, वर्टिकल पोलराइज। वर्टिकल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है अर्थ सरफेस के हिसाब से प्रोपोगेशन होने में, और जैसे जैसा ये वेव बढ़ते जाता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आएगा ये वेव खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, बिकॉज वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी अर्थ सरफेस के साथ में। तो ये टिल्ट एंगल उसका धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। एडवांटेजेस क्या है इस पर्टिकुलर वेव के, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। सो एडवांटेज में यहाँ पे दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन डोंट अफेक्ट द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। समझ में आया, क्योंकि ये वेव ट्रैवल कर रही, कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ पे ट्रैवल कर रही है, तो ऊपर के जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो लाइटनिंग वगैरह है, ये वेव को अफेक्ट नहीं करेंगे। जो एटमॉस्फेरिक के जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। एटमॉस्फेरिक कंडीशन डोंट अफेक्ट द ग्राउंड वेव इफ द ट्रांसमिटेड पावर इज लार्ज इनफ, और अगर इसका ट्रांसमिटेड पावर लार्ज इनफ होगा तो देन ग्राउंड वेव कैन बी यूज टू कम्युनिकेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर यही ट्रांसमिटेड पावर इतना स्ट्रांग होगा कि उसका टिल्ट एंगल जल्दी से बढ़े नहीं, तो ये जो वेव है वो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए यूज़ किया जा सकता है प्रोपोगेट करने के लिए। लेकिन शर्त ये है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो ट्रांसमिटिंग पावर वो इतना स्ट्रांग इनफ होना चाहिए ताकि उसका टिल्ट एंगल इंक्रीज ना हो। तो दैट्स वाई ये एडवांटेज के पॉइंट में ये दिया हुआ है, इफ द ट्रांसमिटेड पावर इज लार्ज इनफ देन ग्राउंड वेव कैन बी यूज टू कम्युनिकेट एट एनी 2 पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। डिसएडवांटेज में क्या दिया हुआ है, लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज, जैसा कि आपको पता है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत कम है। फॉर लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन इट इज़ यूज 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज, तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी रेंज दिया हुआ है ये वेव को प्रोपोगेट करने के लिए, यानी लो फ्रीक्वेंसी की रेंज वाली सिग्नल ही प्रोपोगेट हो सकती है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए, 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। देन सेकंड डिसएडवांटेज क्या दिया हुआ है, हाई ट्रांसमिशन पावर इज रिक्वायर्ड टू कवर अ लार्ज एरिया। जैसा कि मैं बताया कि अगर ट्रांसमिशन पावर ही स्ट्रांग होगा तभी डिस्टेंस कवर होगा अच्छा, अगर ये ट्रांसमिटेड पावर इसका स्ट्रांग नहीं होगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर नहीं हो कर पाएगा, ये वेव जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो ये डिसएडवांटेज का पॉइंट बनता है, हाई ट्रांसमिशन पावर इज रिक्वायर्ड टू कवर अ लार्ज एरिया। एट लो फ्रीक्वेंसी वेरी टॉल एंटेना शुड बी यूज। जैसा कि आपको पता है अगर जितनी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी उतनी ज़्यादा एंटेना की हाइट लगेगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम एंटेना की हाइट। तो जो वेव का ये प्रोपोगेट होने के लिए फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी वेरी लेस है, तो इसलिए टॉल एंटेनास आर यूज फॉर प्रोपोगेटिंग दिस वेव। तो टॉल एंटेना हम लोग को माउंट करने पड़ते हैं ये वेव को प्रोपोगेट कराने के लिए। ठीक है, तो ये तो रिलेशन आपको मैंने पहले बता चुका था, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एंटीना की हाइट लगती है। सो दैट्स वाई फॉर लो फ्रीक्वेंसी पर्पज के लिए यूज होता है, तो टॉल एंटीना शुड बी यूज फॉर प्रोपोगेटिंग दिस टाइप ऑफ वेव। देन द लास्ट एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड इन एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी वीडियो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, पिक्चर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए ये टाइप की वेव प्रोपोगेशन यूज़ होती है इन एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। यूज फॉर शिप कम्युनिकेशन सच एस रेडियो नेविगेशन, और शिप में भी जो शिप वगैरह जो आपकी ट्रैवल होती है उसमें भी ये टाइप का कम्युनिकेशन पर्पस करने के लिए ये वेव प्रोपोगेट यूज़ होती है। समझ में आया आप लोग को। तो वहाँ पे जो सी शोर है वो आज सरफेस के जैसा काम करेगा, और वहाँ पे आपकी वेव क्या होगी, प्रोपोगेट होगी। तो यूज़ फॉर शिप कम्युनिकेशन सच एस रेडियो नेविगेशन। सो ये था आप लोग का एक टाइप ऑफ वेव प्रोपोगेशन जो मैंने अभी आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड कराया था, बताया आप लोग को। तो हम लोग ने वेव प्रोपोगेशन चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें से सबसे पहले आज हम लोग ने ये देखे कि वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टीईएम वेव। फिर then we started with understand with polarization, और polarization के types क्या है वो understand किए। then we have moved towards the types of wave propagation depending upon the frequency range। तो अलग अलग frequency range के हिसाब से कौन कौन सी wave
प्रोपोगेट होती है वो टाइप्स को देखा, और उसमें से आज हम लोग ने एक टाइप ऑफ वेव प्रोपोगेशन को कंप्लीट किए, दैट इज ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। सो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का डायग्राम, एक्सप्लेनेशन एंड विद द हेल्प ऑफ एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन हम लोग ने ख़त्म किए, एंड किए। इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड टाइप, और इसी तरीके से बाकी के दूसरे प्रोपोगेशंस को भी हम लोग ख़त्म करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन क्या होता है, वो सब के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल द टाइम इसी तरीके से आप लोग लेक्चर को प्रॉपरली ज्वाइन करो, अंडरस्टैंड करो, और अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो पूछो, कमेंट करो, तो मुझे भी मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कैसा फिर समझाना है वो मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी। सो टिल द टाइम प्लीज़ स्टे एट होम, stay safe. Thank you very much.